Hello, students. As you all know, we are proceeding with second chapter, Economics, class 10th, sectors of Indian economy. We are discussing about primary, secondary, and tertiary sectors. And the most important thing that we are talking about here is about an agricultural laborers. We are talking about the involvement of people in the primary sector and the causes of the employment, maximum employed people engaged in the primary sector. What were the reasons? Though it seems as if the people are engaged in the primary sector, they are doing some job or they are doing some work in the primary sector, but in a real condition, in a real sense, it is not an employment. In fact, it is underemployment. People feel, family feels that all the people who are there in the family are involved in some or the other work. I'm sorry, children. They feel that they are involved in some or the other work, but in reality it is not so. And she had 2 hectares of land. On the 2 hectares of land, what were they involved in? They were doing, it was unirrigated land. Proper irrigation was not happening. That was the major thing, that was a major problem that was there. What was important here is that a new dam is constructed, canals. If the people who were working, 5 people working on the same piece of land without water availability. Remember, children, in the last class we have discussed about the water availability for those 2 hectares of land. Now water availability was nil. All the people who were there, they were engaged or they were involved in the irrigation work on that 2 hectare of land, but actually they were not doing any work. Actually they were not needed there. So water, if available in abundance, underemployment was the big problem. So how that problem could be solved, that is what we have discussed in the last class. हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. Just I am reminding you that if 2 people are involved in somewhere else, Lakshmi will be able to irrigate her land and take a second crop if water availability improves. For example, she is taking up another crop, that is wheat. Now wheat would be grown in the Rabi season, and 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days. I mean 50 days of involvement by 2 people can give them a proper output in the field of, in the sector in wheat. क्या क्या काम वहाँ पे करना है, you all know it very well. Sowing, watering, fertilizer, application and harvesting. So 2 more members of the family can be employed in her own field. And now suppose, मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, how the problem of underemployment could be solved. Now suppose a new dam is constructed, canals are dug, canals बनाए जाते हैं ना, so that water could be made available for the people who are working very far off, जहाँ पे पानी नहीं है, and people are dependent just on the rain water. So the dam could provide them with proper water. So lot of employment generation could be there in the agricultural sector and underemployment problem would be solved. तो हम तरीका डिस्कस कर रहे हैं. Now what happened कि लक्ष्मी के जैसे we are discussing about the example of Lakshmi, where there are 5 people in the family, 2 hectares of land. Now the people can be involved at some other place, that is very important. They would also need to sell some of these, कुछ तो वो sell करेंगे, and the wheat that they will be growing, they would also need to sell some of these. जैसे के लिए, जिसके लिए means the extra produce that would be there ना, because improve हो जाएगी.
इफ़ द वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल, खाली रेन वाटर पे डिपेंडेंट नहीं रह के अगर वेल के थ्रू वाटर मिल रहा है या कैनाल के थ्रू वाटर आ जाएगा फील्ड में, तो देयर इरिगेशन मेथड विल इम्प्रूव. And what will they do? They may be required to transport their products to a nearby town. पास के एरिया में ले जाएंगे ये. तो अब क्या होगा? अब गवर्नमेंट उनको क्या मदद कर सकती है? Now government invests some money in the transportation and storage of crops. ठीक है? The crops that they are growing, if proper arrangement is made for the transportation, suppose I'm just citing an example. 10 बोरी गेहूं हुई 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड. आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल बेटा, मुझे उतना आइडिया नहीं है हाउ मच, बट आई थिंक इससे ज़्यादा गेहूं हो सकती है. तो टू सैक 2 बोरे तो वो अपने पास रखे अपने यूज़ के लिए, या चलो 4 बोरे रख लेती है, साल भर उनका आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आटा उनको आराम से मिलेगा. एंड 6 बोरे वो क्या करते हैं, बाहर ले जाएंगे, दूसरे शहर में ले जाके उसको बेचेंगे. गवर्नमेंट क्या करेगी, गांव की जो इनकी रोड्स है ना, रूरल रोड्स वुड बी कंस्ट्रक्टेड, इट वुड बी मेड प्रॉपर. सो इफ रूरल रोड्स आर मेड प्रॉपर, तो मिनी ट्रक्स कैन रीच देयर. सेवरल फार्मर्स लाइक लक्ष्मी नाउ, छोटे छोटे ट्रक्स जो हैं इन सब रूरल एरियाज़ में, दूर के गांव में पहुंच सके, इसका अरेंजमेंट गवर्नमेंट को देखना है. एंड देयर आर अदर फार्मर्स ऑल्सो लाइक लक्ष्मी, दे हैव एक्सेस टू वाटर. नहर बन गई ना, रिमेंबर चिल्ड्रन दैट गवर्नमेंट हैज़ मेड द कैनाल, सो नाउ द कैनाल्स हैव बीन मेड. तो लक्ष्मी नाउ हैव एक्सेस टू वाटर एंड शी कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल दीज क्रॉप्स. जो भी अनाज की खेती हो रही है, वॉट एवर क्रॉप इज बीइंग ग्रोन, दे कैन सेल दीज क्रॉप्स. दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर्स बट ऑल्सो अदर्स. अदर्स को कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? ट्रक चलाने के लिए ड्राइवर्स चाहिए, ट्रक को मेंटेन करने के लिए. देयर माइट बी सम पीपल who can take loans and invest, ट्रक खरीदने के लिए या ट्रक लोन्स पे ट्रक हायर करके एंड किराए पे ट्रक चला सकते हैं. मतलब मेनी मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वुड बी देयर. नाउ लक्ष्मी वॉट एवर शी इज़ नीडिंग, जो भी उसको चाहिए, खाली पानी से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. उसको लैंड को कल्टीवेट करने के लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए. She also needs seeds, fertilizers, agricultural equipment, pump sets, मतलब और भी चीज़ें चाहिए ना, to draw water. तो एग्रीकल्चर इज, मतलब कहने को एग्रीकल्चर है, कहने को प्राइमरी है, लेकिन मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दैट. तो सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट चाहिए, pump set चाहिए. all these things that are required, Lakshmi needs to arrange for all these. And अभी she is poor, so बहुत सारी चीज़ें तो she could not arrange for. So what will she do? Again she has to borrow money from the money lender. You know, local level पे the money lenders who provide loan, पैसे की जब भी ज़रूरत पड़ती है ना, गांव वालों को वो कहेंगे हाँ हाँ पैसे ले लो, टेक एज मच मनी यू वांट. and the poor people and the needy people ना, they get trapped into it, फंस जाते हैं. Got it? तो what happens? मनी लेंडर से शी शुड नॉट टेक मनी. या मतलब गांव में जो लोकल लेवल पे द मनी लेंडर्स हु आर देयर, हु आर प्रोवाइडिंग इनफॉर्मल क्रेडिट, नॉट इन अ फॉर्मल मैनर, खाली एक कागज पे अंगूठा लगवा के उनको बोलते हैं हाँ जितने पैसे चाहिए ले लो,
कागज पे जो अंगूठा लगवाते हैं उसमें वो क्या करते हैं, उनकी सारी ज़मीन अपने पास रख लेते हैं. They take all that land that belongs to the farmer. तो this is also a problem. तो अब ये प्रॉब्लम में how can the government help Lakshmi? Suppose the local banks are there, they give her credit, पैसे उसको दे दे रीजनेबल रेट पे. बहुत आई मीन इंटरेस्ट, रीजनेबल रेट मीन्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेके कम इंटरेस्ट में उसको अगर अच्छा सा लोन मिल जाए. बाकी की सारी चीज़ों की जो लिस्ट आपने देखी, व्हाट ऑल थिंग्स वेर देयर, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, पंप सेट, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये भी तो चाहिए खेत के लिए. तो दिस कुड बी अवेलेबल, एग्रीकल्चरल क्रेडिट लेके टू द फार्मर्स फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव. इसके बारे में हमको और भी पता चलेगा इन द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, थर्ड चैप्टर. इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, इसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग सेक्टर्स, हाउ द बैंकिंग सेक्टर्स वर्क एंड व्हाट क्रेडिट डू द बैंकिंग सेक्टर्स प्रोवाइड टू द फार्मर्स हु नीड द क्रेडिट, मतलब जिनको पैसे चाहिए. दूसरा और मेथड क्या है, हाउ टू अंडर एम्प्लॉयमेंट. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेज एंड थ्रू विच द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट कुड बी सॉल्व. दूसरा मेथड क्या है, वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज. सबसे पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे किस तरह की इंडस्ट्रीज ले डाउन कर सकते हैं. यू कैनॉट ओपन इंडस्ट्री एनी वेयर. अब जैसा हम कहें कि यहाँ पे नमक की इंडस्ट्री खोल दो, सॉरी इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी कैनॉट डू दैट. गॉट इट. तो प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर इंडस्ट्री शुड बी देयर, दैट शुड बी लेड डाउन एंड प्लानिंग, उसके लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी है. सो वी हैव टू सी, आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज. सेमी रूरल मतलब जो थोड़ा सा शहर से लगे हुए हैं. लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी एम्प्लॉयड. बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये जो लोग भाग भाग के शहर जाते हैं इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दे नीड टू वर्क, दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क एंड हाउ टू अर्न मनी. पैसे के लिए तो सारी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये मनी मेकिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है. लार्ज नंबर ऑफ पीपल में बी एम्प्लॉयड. जैसे Many farmers decide to grow अरहर एंड चिकपी. मतलब फार्मर्स को लगता है ना कि अरहर की दाल बहुत ज़्यादा अक्सर क्या, अरहर की दाल बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है, तो दे कैन ग्रो अरहर. लेकिन ग्रोइंग अरहर अगेन नीड्स लॉट ऑफ, आप कोई भी काम करो, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चरल और वेदर इट इज़ वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज, प्रॉपर मनी इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड. तो फार्मर्स जो हैं वो अरहर ग्रो करेंगे, चिकपी काबली चना या छोले भटूरे जो आप खाते हैं, या दैट इज चिकपी. सेटिंग अप दाल मिल एंड प्रोक्योर एंड प्रोसेस दीज. ठीक है, दाल के मिल्स लगा सकते हैं और वो उसको ले जाके दालों को रिफाइन करके शहरों में उसके पैकेट्स बना के सेल करना. दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड मेथड ऑफ अर्निंग मनी. तो दे प्रोसेस दिस एंड सेल इन द सिटीज इन वन सच एग्जाम्पल. और गवर्नमेंट से क्या मदद मिल सकती है, ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज. What happens in the village areas, lot of wheat is produced, lot of rice is produced, दाल हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खेती हो रही है. तो ये जो खेती हो रही है इसमें we need to understand कि some material they are keeping for their own use, अपने इस्तेमाल के लिए रख रहे हैं, कुछ चीज़ें बाज़ार में ले जाके सेल कर रहे हैं, लेकिन some of the stock that is there, तो कभी चूहे लग जाते हैं, कभी कीड़ा लग जाता है, दीमक. तो हाउ टू, यू नो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग डिपार्टमेंट ऑफ स्टोरेज. हाउ टू कीप दिस फूड दैट इज एज स्टॉक, स्टोरेज का क्या व्यवस्था कर सकती है.
तो गवर्नमेंट कैन स्टोर देयर प्रोडक्ट्स जैसे पोटैटो, अनियन एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज गुड। 4 रुपए में उन्होंने मान लो कि आलू की खेती की है, लेकिन आलू बाजार में कितने में बिक रहा है? 10 रुपए में। सो इमेजिन द प्रॉफिट मार्जिन दैट द फार्मर्स वुड बी गेटिंग। यस चिल्ड्रन, 6 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन है 1 kg पे। तो पैसा इन्वेस्ट कितना किया? 4 रुपीज़ एंड दे आर गेटिंग 6 रुपीज़। लेकिन पूरा उनको नहीं मिलता है मार्केट तक लाने में, ट्रांसपोर्ट और ये सारा खर्चा जो होता है ना, उसको मिला के दिस पोटैटो इज सोल्ड इन द मार्केट एट 10 रुपीज़। विलेजेस में क्या होता है, जो गांव के जो गांव हैं वहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज होते हैं विलेज के पास, बिग फॉरेस्ट एरियाज आर देयर। हनी कलेक्शन का बिजनेस कर सकते हैं। Farmers can come and sell wild honey. In near the village areas, near the forest areas, lot of honey is available at very low cost and good quality. सीधे एकदम पेड़ से जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वहाँ से हनी निकाल के और लाके मार्केट में लाके घरों के पास सेल करते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज, इट इज़ पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। वेजिटेबल्स की लगा सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टमेटो, फ्रूट्स, ये सब जो हैं बाहर के मार्केट में द फार्मर्स कुड टेक इट एंड सेल इट। तो यू कैन इमेजिन, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वेल द अर्निंग वुड बी, कितना अच्छा पैसे अर्न कर पाएंगे ये फार्मर्स। तो now understand that this will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers. बड़े बड़े शहरों में जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे शहर, सेमी रूरल एरियाज मीन्स जो छोटे छोटे शहर हैं, मतलब पूरे गांव नहीं है और पूरा बड़ा शहर भी नहीं है, हल्का फुल्का, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू विलेज ऑल्सो एंड नॉट रिलेटेड टू सिटीज़ ऑल्सो, that is there. अब अपने एरिया में थोड़ा सा सर्वे करने की कोशिश करो। नॉट नाउ, अभी नहीं करना है बेटे, ये दिस वुड बी डन व्हेन द कंडीशन बिकम्स नॉर्मल। डोंट गो आउट कि मैम ने कहा है सर्वे करने के लिए। तो जस्ट ट्राई टू चेक इट आउट, व्हाट ग्रुप्स ऑफ पीपल डू यू थिंक आर अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड आपके एरिया में। कैन यू थिंक ऑफ सम मेजर्स जो कि मने how you can also suggest ways and methods to improve or to solve the problem of unemployment. Got it? That is there. Now just see India की condition अभी. Now we are trying to understand the condition of India. About 60% of population belongs to the 5 to 29 years. मतलब सोचो 60% of population can be very productive. Now I would like to discuss here children the chapter that you have read in class 9th, people as resource. Second chapter याद आया आपको? Yes, you have studied and you might be definitely remembering that the population belongs to the age group 5 to 29 years. और जिसमें से कि only 51%, मतलब 60% का 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रेस्ट आर नॉट। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? आर दे नॉट गोइंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? तो वो क्या रहे हैं? द रेस्ट आर नॉट, दे मे बी एट होम और मेनी ऑफ देम मे बी working as child laborers. मतलब try to understand age group 5 to 29. तो इसमें बच्चे बहुत सारे हैं and believe me children, in the big cities आप अक्सर चाय की दुकानों पे या छोटे मोटे होटल्स में आप देखोगे द चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 10 to 11 years 12 years आर वर्किंग एज, वो जो बोलते हैं जाओ छोटू खाना लेके आओ जाओ, तो ये दीज चिल्ड्रेन
छोटे छोटे बच्चे जो हैं जिनको छोटू छोटू बोल के और खाना के लिए वो कह रहे हैं, इमेजिन वाई दीज आर नॉट गोइंग टू स्कूल्स, ये पढ़ाई करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, दैट इज देयर. तो now if these children are attending schools, हमको बिल्डिंग चाहिए, टीचर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, all these things would be required in abundance and ज़्यादा चाहिए, abundance means ज़्यादा. तो अभी प्लानिंग कमीशन had done a survey, now it is called as नीति आयोग. Now please try to understand, 1 mark के लिए it is very frequently asked, 1 mark के लिए कि what is the new name of planning commission, you have to give नीति आयोग. 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. 20 लाख लोगों को जॉब मिल जाएगी. चिल्ड्रन, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी सॉल्व्ड एज इट इज़. ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो इसी तरह व्हाट हैपन्स, वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन. अगर हेल्दी लोगों, पॉपुलेशन को हेल्दी करना है तो हमको बहुत सारे डॉक्टर, वी नीड मेनी डॉक्टर्स एंड नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स जो कि गांव गांव में जाके काम कर सकें, टू वर्क इन रूरल एरियाज. तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, these are the points that are given. So some ways by which jobs would be created, and we will be able to address the important aspects of development. हमको समझ में आएगा कि how development is happening. चैप्टर 1 में जो हमने the things, the points that we have discussed in chapter 1, we will be understanding how these things could be solved. Now what happens, every state and every region has potential. Potential means, of course, there is scope of development. There are ways and means of developing. So the potential for increasing the income and employment for people in that area. Every state has got some tourist areas. Every state has got some ideas, some methods how the income can be increased and how employment can be given to the people. तो क्या क्या है वो तरीका, how can they do that? अभी वाराणसी में there is so much of scope for tourism or regional craft industry. Varanasi में I'll tell you what are the regional craft industry. You know, wooden toys. If you go to the विश्वनाथ गली, अभी तो नहीं जाना बेटे, अभी तो लॉकडाउन है, but if you have gone to Vishwanath, you will find very few shops are there which are selling wooden toys. लकड़ी से बने हुए खिलौने मिलते हैं वहाँ पे, and all the handicraft and production, that is something very unique of Varanasi. Handicraft मतलब the foreigners who come here, उनके बीच में इतना क्रेज है इन खिलौनों का एंड इन आर्टिक्राफ्ट्स द हैंडीक्राफ्ट का. तो न्यू सर्विसेज लाइक IT सेक्टर ऑल्सो. आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री. सो थोड़ा सा खाली वेयर वी आर लैकिंग इज सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग and support from the government. Many a times I have seen that articles are coming out in the newspapers and all ki support is required by the handicraft local industry and the local people. If they provide help is given to these handicraft people, lot of employment generation could be there. Same thing has been studied by the planning commission. They say that tourism is improving and tourism can be developed as a sector where lot of employment generation is there. Every year we can give additional employment to 35 lakh people. अभी देखो चिल्ड्रन, आप
हमेशा कहते हो ना डॉक्टर इंजीनियर. टूरिज्म इज अ सेक्टर दैट इज कमिंग अप वेरी फास्ट. पहले तक तो था बेटा, लेकिन अभी क्या है कि अभी तो ये टूरिज्म पे साल 2 साल तक तो देयर इज़ वेरी लेस स्कोप बिकॉज ऑफ दिस वायरस थिंग. अभी क्या होगा, टूरिज्म सेक्टर विल गो लो. पहले तो बहुत तेज़ी से ऊपर आया, लेकिन अब क्या है कि इट वुड बी गोइंग लो. People are not will be not allowed to go to any other country. Now people would not want also to go. So some suggestions that are discussed here, बहुत टाइम लगेगा. अभी हम बातें तो कर लेते हैं, लेकिन वही बात है, where we are lacking is planning. We need to do lot of planning and we need some quick measures. जल्दी जल्दी गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, सम क्विक मेजर्स. रिकग्नाइजिंग दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मेड अ लॉ. क्या लॉ उन्होंने बनाया है? इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क. yes, in about 625 districts of India, right to work has been implemented. It is called as मनरेगा. मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की मतलब रोजगार मिलेगा ही मिलेगा. एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज देयर. गॉट इट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अंडर मनरेगा 2005, पहले ये दिस क्वेश्चन इज वेरी मच आस्क्ड. पहले तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट आर द मेजर प्रोविजंस ऑफ मनरेगा. तो इसमें क्या है, ऑल दोज हु आर एबल टू, जो काम कर सकते हैं, वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट. 1 साल में मिलता है बाय द गवर्नमेंट. And in 1 year only they will get job if they get themselves registered to Manrega. The people who are staying in the rural areas, when they get themselves registered to Manrega, so what will happen, they will be employed within 100 days by the government. And if the government is not providing them job, if the government fails to provide employment, just see, it is nicely mentioned here, it will give unemployment allowance. Means the people are unemployed, लेकिन एजुकेटेड हैं, काम नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट ने उनको इंश्योर किया है कि काम देंगे. फिर अगर काम नहीं दे पाते हैं तो गवर्नमेंट को उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा. गवर्नमेंट विल गिव दोज रजिस्टर्ड पीपल सम अलाउंस, 1000 रुपीज, 1500, जो भी है. इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट. ये नहीं कि 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा देंगे. एंड पीपल हु आर लिविंग इन द विलेज एरियाज, कम पैसे में भी उनका खर्चा चल जाता है. सो द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड, दे विल बी गिवन. सो अंडर द एक्ट, दिस टाइप ऑफ वर्क, they will be given preference under this act. People are registered with मनरेगा and whenever employment opportunity is there. ये देखो किस तरह का काम कर रहे हैं. People who are working under the मनरेगा, I'm sorry children, ठीक है, पोल्स में कलर करने का काम चल रहा है, उसके नीचे में ये है. मतलब जॉब तो आपको गवर्नमेंट देगी ही देगी अंडर मनरेगा. ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट चेक व्हाट गुड़ मेकिंग हो रहा है. ये कहाँ पे हो रहा है? हरियाणा में. गुड़ मेकिंग इज हैपनिंग इन हरियाणा. ओके, और भी कोई पिक्चर्स था? ये पिक्चर्स तो हमने देख लिया था. हाउ गुड़ इज मेड, किस तरह से गुड़ मेकिंग इंडस्ट्रीज आर फ्लरिशिंग, दैट इज देयर. नाउ ये अंडर द मनरेगा हाउ द एम्प्लॉयमेंट वुड बी गिवन टू द पीपल. ये है, वी विल बी डूइंग दिस एक्टिविटी. लेट्स वर्क दिस आउट. ऑल दीज क्वेश्चंस आर important and we have to do all these questions in detail. Okay children,
So please keep revising and try to complete this. We'll be completing this chapter in the next video. नहीं अभी it's big, so it will take at least 2 to 3 more videos would be made, and then this chapter would be complete before your vacations. I hope so that you can complete this chapter in your in this time. So next video we will be starting with these questions. Okay children, thank you children, and all the best to you.